First of all, I welcome you here at MRCFC Kharodi, Scotch Kashmir. And at the onset, we are fortunate enough that we have with us Associate Director Research of this research station, Professor Najibur Rahman Sofi Saab. And sir, these are the participants who are from KVK Gandarbal who have joined this training program, and this training program is conducted there at KVK Gandarbal. Since training program is on trichoderma, so we have a technology, we have developed low cost trichoderma formulations, we have patent on trichoderma. That is why coordinator of the training program sent these participants, this is their second day, yesterday was inaugural, sent these participants here to see what we are doing and what kind of experience we have as far as trichoderma is concerned. I request Professor Najib Saab to come on the dais to say brief for 10 minutes about MRCFC Kharodi, what we are doing here at MRCFC Kharodi. Then after I will take the lecture myself. First of all, I welcome you all on behalf of the center, and as being the head of the center, I welcome you to this prestigious Institute of Coast of Kashmir. And yesterday, Dr. Ishfaq Saab called me on phone that we wanted that the participants be informed about updates in trichoderma research and how to enter in the trichoderma business as entrepreneur. So he has chosen this place for this kind of assignment because we have our experts in this particular field. Dr. Fayaz Mahdi, since his PhD program, he is directly involved with this particular research. And we have our well-established lab for this trichoderma, and every year we are providing these trichoderma bioformulations, particularly liquid formulations, to various indenters across Kashmir. So Dr. Fayaz Ahmed will tell you in detail the complete protocol for developing, for manufacturing of this kind of product, and that is highly useful for what we can call as sustainable agriculture. So he will tell you practical things, how to prepare this, how to prepare that culture, then temperature regimes, humidity regimes, he will tell you everything. So far as this center is concerned, this center has the mandate of field crop research. And in field crop research, we do research on three important crops. There are the staple, two of them are staple food. Out of that, number one, that is rice, that is staple food of Kashmir. Wheat, that is staple food of Jammu. And oilseeds. So far as rice is concerned, we work on temperate rices. And in temperate rices, we work on world-class rices that are not being developed, that are not being bred, that are not being cultivated in any part of the world. Our rices are unique because they are highly suitable for high hills of the country, high hills of India, rather we can call it high hills of the world. There are other ecologies of similar type in Japan, in northern China, in Korea. So, but they are exceptions. So far as this Kashmir is concerned, here we grow rice from 1500 meter and above, and it is the cut-off limit. It is the cut-off limit because entire India grows rice up to 1000 meter. So cut-off limit is 1000, then up to 1000 to 1500. There is no rice across India.
and then from 1500 it is only Kashmir that grows rice. So ecology wise, genotype wise, variety wise, we are unique, and for this we have to focus on our own breeding programs, for own production technologies, for own protection technologies, because it is not like that you will get seed packet uh, from any vendor or from even from organized market, and you will get the seed packet like of any vegetable and you will grow it at your home and you will be satisfied. No, it is not like that. You will not get this paddy seed from market, and you cannot grow paddy varieties developed from Sukas to Jammu. You cannot grow paddy varieties grown from Himachal. It is not like that, because the Himachal varieties, they are suitable up to 1000 meter, and our varieties are highly recommended for 1500 meter above. So we have to focus on our own this indigenous breeding program, and the outcome of that indigenous breeding program that was started here in 1942, 8 years before freedom. Then first of all there were introductions from temperate world, northern China, Korea, Turkey, and the material was procured and the material was demanded for cultivation under Kashmir conditions, because whatever the rice varieties people were growing here, they were indigenous local land races. You know the word of local land races, they are not high yielding, they are disease prone, they are not suitable for this mechanized farming. They are not, they have hard threshing, they are not having palatability, they are not having white shining rice. For that we started importing varieties, we started procuring varieties, we started germplasm collection from rest of the world through different international and national agencies. Finally China series was tested in Kashmir Valley, and that China series did not came to your home directly. It was tested at Kodwani Center. It is this place where these varieties were tested. And then after rigorous testing for 2, 3, 4 years, then the samples were provided to the farmers. And within very short span of time, within 2 years, 3 years, farmers replaced all their local land races, because they were having high yielding capacity. They were disease resistant. They were having easy threshability. They were having very good cooking quality. They were having this luster or shining. So these are the contributions of this center, that first varieties that were imported, they were procured in the form of exchange of germplasm and tested at this center. Then came the era of our indigenous development breeding program that was started in 1982, when this center was actually the part of Department of Agriculture, Jammu Kashmir, and it was a regional center. Then this center in toto got transferred to Sukast Kashmir, Sher-e Kashmir University of Agriculture Science and Technology in 1982. Then from 1982 we started our own breeding programs. Why to be dependent on the imports from other states in the form for seed purpose? So we started developing our own breeding programs, and finally we first of the variety that was bred here, it was K39. Similarly then K78, variety name Barkar. Then came the era of Jahlam. Then the variety Chenab, named on the river basin. Suppose in Kashmir it is the Jahlam river, so the variety was named Jahlam. So it is fit for Jahlam and adjust Jahlam basins. Then Chenab, it was suitable for Jammu. Similarly, then in 2001 we started our next generation varieties, or in the form of modern varieties, that was in the form of Shalimar rice series, Shalimar rice 1, 2, 3, 4, 5, and this time in 2024 we released Shalimar rice 9, Shalimar rice 8 and Shalimar rice 7. It is not like that. Any variety can be recommended for any place. No, it is not like that. A variety can be recommended for a particular region after it is rigorous testing in that ecology for minimum of 2 years,
and over many sites, many sites. Suppose Shalimar rice 9, it was highly recommended for very high altitudes. Shalimar rice 8 for mid altitudes. Shalimar rice 7 for low altitudes. It is like that. It is not that Shalimar rice 7 can be grown in any part of the valley. No, it is not like that. So this is why I am talking about rice. So far as wheat is concerned, in wheat we have not been able to develop till date the variety that is suitable under rice wheat rotation. Just harvesting rice, growing wheat. Reason that all the varieties of wheat, they get harvested in the month of in the second week to third week of June. But by the time the window for transplanting of rice is not there. So farmers don't take it as a second crop, because farmers' target is to harvest the rabi crop in the second to third week of May, so that he will get at least 10 days for land preparation and other things. Harvesting, then heaping it up, then preparing land for the second crop. So since it gets harvested in the second to third week of June, so farmer did not get time, and he at the same time do not want to sacrifice his main crop, that is rice. So that is the thing. And so far as our wheat is concerned, we have developed wheat 1, wheat 2 and wheat 3. Wheat 3, presently wheat 3, it gets harvested in the second week of June. Similarly, oilseed research, time हो जाए oilseed, because नमाज का टाइम है. अगर आप यहाँ पे 1 बजे शाम नमाज है यहाँ पे, तो लोकल मस्जिद है, जामिया मस्जिद, तो आप है ना, you can avail the time. So far as oil seeds are concerned, you know, whatever we grow in Kashmir, it is all brown sarson. It is not, हम बोलते हैं ना mustard. It is not mustard. Mustard is something different. It is Brassica rapa or Brassica compestris. Brassica compestris or variety brown sarson. So all the varieties that are suitable for Kashmir are brown sarson varieties. Why? Because brown sarson varieties, they get harvested. They have their maturity by second week to at the most third week of May. So by the time farmers get ample time for harvesting this, collecting this, threshing this and preparing land for the next crop, and by the time his nurseries are ready for transplanting. Okay. So far as brown sarson is concerned, we have developed 7 varieties like Gulchen, then SKO 101, then Shalimar Sarson 1, then Shalimar Sarson 2. Shalimar Sarson 2 is presently the most popular variety, and it is being grown across Kashmir, and every year we are providing breeder seed to the tune of 3 quintals, because 3 quintals is enough to cover complete Kashmir Valley as breeder seed. At the same time, we are also producing foundation seed, and we are complementing the deficit that is sometimes from the Department of Agriculture, and we are complementing that. I think without taking much time, because this training is strictly meant for this trichoderma and these biocontrol agents, Dr. Fayaz Ahmad Mahidi, he will tell you in detail the complete protocol, so that if someone of them or a group of you from this set is ready to take this as entrepreneurship or emerge as a single entrepreneur. Thank you. Thank you very much, sir. This was brief about MRCFC Khurwani. अब आते हैं आपके ट्रेनिंग प्रोग्राम की तरफ, and I am seeing the title New Techniques for Commercialization of Biocontrol Agents. In the brackets, it's Trichoderma to promote organic agriculture. अगर आप टाइटल खुद भी देखेंगे, अभी हो सकता है कल भी आपने इसकी तरफ आपका जहन गया होगा. न्यू टेक्निक्स फॉर कमर्शलाइजेशन. हो सकता है कल I think someone from you are developing Trichoderma. Yesterday in the inaugural section, while you were giving introduction, someone are developing Trichoderma, and they are earning
how much you are earning? Someone was saying 1 crore कुछ कल में Actually, he is सुना. not present here today, sir. So they are not present. He's not present. तुम चुना. No, sir. Okay, okay, okay. But yes, using Corona, government did not analyze in perspective like agriculture high development. They did not analyzing it. आप कहाँ से लाते हैं? आप खुद इस्तेमाल करते हैं ट्राइकोडर्मा? हाँ. आप बोलो जरा. Okay, okay. मैं जोहर अहमद बाबा से दिलाता हूँ, जी. डॉक्टर खुर्शीद साहब से दिलाता हूँ, लेकिन जो हमारे पास हम खुद बनाते हैं, हमने भी सीखे हैं, लेकिन एनालाइज हम नहीं, बिल्कुल हम बेच नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई लाइसेंस नहीं है, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि 1 करोड़ इसके लिए लगते हैं, 2 करोड़ लगते हैं. ऐसा हमारे पास सोर्स नहीं है कि हम 1 करोड़ या 2 करोड़ इसमें लगा सकते हैं. और ये जो ट्राइकोडर्मा है, इसके जीनियस जो फंगस है, जीनियस एक्चुअली जीनियस फंगस है, इसमें बहुत से मतलब हम इसमें एक कंफ्यूज होते हैं कि हम कौन सा ऑरिजिन इस्तेमाल करेंगे. अगर हमारा सोर्स है वर्मी कंपोज या हम डायरेक्टली इसमें सॉइल में देते हैं, इसके लिए हमारे पास कौन सा जीनियस फंगस इसके लिए सबसे बेहतरीन है. लेकिन आप किसके लिए यूज करते थे? अगर आप वर्मी कंपोज के लिए नहीं वर्मी कंपोस्ट में बायोफोर्टिफिकेशन वर्मी कंपोस्ट मिक्स, देन आफ्टर व्हाट पर्पस यू आर यूजिंग दिस? ग्रोथ, प्लांट ग्रोथ के लिए या डिजीज जैसे बीमारी, मिट्टी की बीमारी, रूट रॉट डिजीज को रोकने के लिए? हाँ? हाँ, ये तो करिए इस्तेमाल, तुम वन कि ग्रोथ ते बढ़े तो बीमारी ते रोक. आप बैठिए देखो. इसीलिए मैं टाइटल की तरफ आया. इसीलिए मैं टाइटल की तरफ आया, न्यू टेक्निक्स फॉर कमर्शलाइजेशन. कमर्शियल प्रोडक्ट इज दैट वायर यू आर अर्निंग समथिंग. आप कुछ कमा रहे हो. जब आप कमर्शलाइज करेंगे, जिसमें आप कमाएंगे, वो चीज इस टाइटल में है. कमर्शलाइजिंग द थिंग्स मीन्स यू आर अर्निंग फ्रॉम दैट प्रोडक्ट नाउ. लेकिन करे कैसे? आपका कहना सही है. देखिए, हम आपको टेक्निक्स सर, हम टेक्निक हाँ नहीं आप बताओ. टेक्निक समझने के बाद भी ये सेल आउट नहीं कर सकते. सही बात है. यस सर. मैं बता रहा हूँ ना, इसीलिए कि कमर्शलाइज नई टेक्निक्स क्या है कमर्शलाइजेशन के लिए, जिसमें आप सेल आउट कर सकते हैं. थोड़ा सा आपको रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी, और वो भी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर से. ठीक है, आपको याद रखना है इसमें वही न्यू टेक्निक है जिससे आप सेल आउट कर सकते हैं अगर आप खुद बनाएंगे. कैसे सेल आउट करेंगे? देखिए, ये मेरा टाइटल है. दिस इज द टाइटल, डेवलपमेंट ऑफ लो कॉस्ट बायोपेस्टिसाइड्स. व्हेन एवर आई विल राइट बायोपेस्टिसाइड, हो सकता है आपको पता नहीं बायोपेस्टिसाइड क्या है, किसी को पता है, या बायो कंट्रोल एजेंट क्या है. बायो समथिंग लिविंग, नमाज 1:30 बजे भी हम इकट्ठे जाएंगे उस वक्त. बायो समथिंग लिविंग पेस्ट which causes damage to the plants is a pest. Side means to kill. 3 चीजें हैं. कोई लिविंग चीज है, वहां पेस्ट भी है जो डैमेज करता है प्लांट को, और साइड भी है किल. कुछ लिविंग चीज है जो पेस्ट को मार रहा है. Something living is there which is used to kill the pests. Pests are those things which causes damage to the plants, which includes fungi, bacteria, viruses, weeds. जो भी चीज डैमेज करता है प्लांट को, उसको पेस्ट कहेंगे. तो बायोपेस्टिसाइड में कुछ चीज है लिविंग जो पेस्ट्स को मार रहा है. इसमें 3 चीजें आप तकसीम करो, बायोपेस्टिसाइड. ठीक है, अगर आप इस नाम से अपनी बायो फॉर्मुलेशन बनाएंगे तो उसके लिए आपको necessarily you have to follow Center Insecticidal Board guidelines, and for that purpose necessarily you have to pay for the registration, and lot of things are required for its registration. रजिस्ट्रेशन के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगे. उनकी गाइडलाइंस में बहुत सारी चीज़ें ऐसी है. टॉक्सिकोलॉजिकल डेटा जो बड़ा मुश्किल होता है फिर जनरेट करना हमारे लिए.
उसके साथ साथ ये क्या करता है, कितने टाइम पे आपको रखना है, बहुत सारी चीज़ें उनको चाहिए गाइडलाइंस में। उसको आपके लिए फी भी है 2-3 लाख जो आप बता रहे हैं 1 करोड़ लगेगा फिर जब हम भेजेंगे। लेकिन बेहतर मेरा ये कहना है कि आप बायोपेस्टिसाइड नाम में इसे मत भेजो। जिस तरह बायो फर्टिलाइजर आप बोल रहे हैं ना, आप इसको बायो कंट्रोल एजेंट, बायो फॉर्मुलेशन, बायो स्टिमुलेंट, if you will give these names to it, you will be free from CIB guidelines. You need some sort of guidelines which department, जो डिपार्टमेंट को जरूरत है स्टेट में भेजने के लिए, फिर आपको CIB गाइडलाइंस की जरूरत है। ये आप एक पॉइंट याद रखिए। देखिए बायो मैंने जो बोला कि समथिंग लिविंग, वो मतलब समथिंग लिविंग बायो कंट्रोल एजेंट इसमें है। और अगर इसमें ट्राइकोडर्मा रखेंगे तो आप ट्राइकोडर्मा बायो फॉर्मुलेशन बोलेंगे या ट्राइकोडर्मा बायोपेस्टिसाइड, लीव बायोपेस्टिसाइड एसाइड। अब आप बायोपेस्टिसाइड नहीं बोलेंगे क्योंकि आपको कमर्शियल करना है, और आप बायो फॉर्मुलेशन बोलेंगे, एक चीज। दूसरा, लेबल क्लेम में आप हमेशा रखेंगे कि ये बायो फॉर्मुलेशन ग्रोथ प्लांट इंक्रीज कर रहा है। लेबल क्लेम में आप ये नहीं रखेंगे कि ये किसी पेस्ट को या पैथोजन को मार रहा है। अगर आप लेबल में रखेंगे कि ये पैथोजन को मार रहा है, देन इट इज अ बायोपेस्टिसाइड एंड यू हैव टू रजिस्टर इट थ्रू CIB। आपको लेबल क्लेम में रखना है कि ये ग्रोथ, और इनडायरेक्टली कैसे ग्रोथ इंक्रीज कर रहा है, इसके पास ग्रोथ रेगुलेटर है, ये रिलीज कर रहा है। हमारा मानना है हमारी सॉइल में फास्फोरस बहुत ज्यादा है, बट प्लांट इज अनेबल टू टेक इट अप। वो प्लांट नहीं ऊपर ले रहा है, लेकिन ये ट्राइकोडर्मा इस फास्फोरस को इस फॉर्म में बनाता है कि प्लांट्स ले लेता है। हमें DAP की जरूरत नहीं पड़ेगी डालने में। तो ऐसे क्वालिटीज है ट्राइकोडर्मा में कि जो वो एज ए बायो फर्टिलाइजर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपके दिमाग में वही रखना है, यू हैव टू कीप दिस ऑन द लेबल इटसेल्फ। इट प्लेज ए रोल फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स by producing growth regulators, let it be auxins, by solubilize phosphate in the soil. And indirectly it also increases the growth by how? Indirectly ये kill करता है soil borne pathogen। लेकिन लेबल पे नहीं रखना है, लेबल में आप ऐसे रखोगे। Important, अगर आप बनाएंगे ना, अभी बहुत मौका है ऑर्गेनिक फार्मिंग में। Everyone is after trichoderma, why? अभी बहुत ज्यादा जो भी हाई डेंसिटी प्लांटेशन लोग कर रहे हैं ना, कन्वर्ट करना है राइस फील्ड्स को भी कन्वर्जन हो रहा है, और उसमें रूट रॉट की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ रही है। रूट रॉट के लिए बहुत सारे हम केमिकल्स इस्तेमाल कर सकते हैं, बट इट इज डिफिकल्ट टू मैनेज विद द केमिकल्स, एंड यू कैन यूज ट्राइकोडर्मा एज एन अल्टरनेट एंड इट प्लेज अ रोल। ये सॉइल बॉर्न पैथोजन को मारता है। तो ये एक आप टेक्निक याद रखिए। अगर आपको कमर्शियल करना है, आप कमर्शियल कर सकते हैं बाय कीपिंग दिस बायोपेस्टिसाइड एसाइड, use bioformulation word। आपको यही this is a what you have said taught them in technique, new technique। That is why मैं directly आपके title पे आया कि this is the technique how you can commercialize it here in your Kashmir, और कश्मीर स्टेट के लिए आप उस हिसाब से बना सकते हैं। गाइडलाइंस चेंज करो आप। देखिए नेक्स्ट 2-3 चीजें हैं। ये तो कमर्शलाइजेशन के लिए ये टेक्निक आप याद रखेंगे। ये मैंने ये स्लाइड रखी है जब स्टार्ट हुआ HADP प्रोजेक्ट। इन वन ऑफ द प्रोजेक्ट आई वाज FA मेंबर सेक्रेटरी इन प्रमोशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। HADP आप जानते ही है, अभी हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम। कश्मीर फर्स्ट जगह ऐसी है जहाँ पे HADP शुरू हुआ, और यही पैटर्न अगर चला 5 साल यहाँ पे, ये देखेंगे कि यहाँ पे कितना प्रोग्रेस हुआ एग्रीकल्चर में, इफ इट वर्क्स लाइक दिस। और यही पॉलिसी थ्रू आउट इंडिया ये करेंगे। तो इसमें बिगिनिंग में कुछ ही प्रोजेक्ट रखे थे, तो फाइनली 29 प्रोजेक्ट्स आ गए। और उस प्रोजेक्ट्स में ऑर्गेनिक के लिए भी, जैसे प्रमोशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, नेसेसरली वन एस्पेक्ट इज दैट। For that purpose, whenever you will think about organic agriculture, तो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में आपको बायो कंट्रोल एजेंट चाहिए ही चाहिए एज एन अल्टरनेटिव टू केमिकल्स।
और उसके लिए आपको फिर ये डेवलप करना बहुत ज़रूरी है और कमर्शलाइज भी करना है, और आप एज अच्छे एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। अभी आप इस चीज़ की तरफ, क्योंकि हम जा रहे हैं यहाँ से, और हो सकता है कल को यही बायो फॉर्मुलेशन यहाँ से हम बाहर भी भेज सकते हैं कि आप ले लीजिए एज एन अल्टरनेट। क्योंकि हम, इसीलिए मैंने ये रखा कि हम यहाँ पे फिर उनके लिए, वो बोलते हैं ना कि गाइड, इस बनो गाइड throughout India, throughout states, how we have we done it, how we conducted this HADP program during 5 years, और हमारे पास कितने एंटरप्रेन्योर बने, हमने स्किल डेवलपमेंट कितना किया इस HADP से। अब आपको भी ऐसे करना है, यू विल बी अ गाइड, और आप उस वक्त उनको ये फॉर्मुलेशन यहाँ से भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये हमारा फील्ड है जो यहाँ पे राइस के रिलेटेड जो काम होता है, ये मैंने रखा था आपको दिखाने के लिए कि एज ए पैथोलॉजिस्ट व्हाट वी आर डूइंग। नजीब साहब ने आपको ओवरऑल दिया। हाँ नेक्स्ट देखिए, ये कुछ डिजीज ब्लास्ट आपने सुना होगा, राइड एमर्ज लगन, ये कुछ फोटोग्राफ्स यहाँ से उसके सिम्टम्स। हाँ आगे, ये उसी के राइड एमर्ज सिम्टम जो मुश्किल गुज्जी में आते हैं, यहाँ पे हम लगाते हैं मुश्किल गुज्जी। हाँ नेक्स्ट, इसी तरह से ब्राउन स्पॉट क्या है, ब्लास्ट क्या है, उसका थोड़ा सा डिफरेंस। हाँ चलो, तो ये ब्लास्ट के सिम्टम जो आते हैं फील्ड में, राइबोमर। हाँ आगे मुश्किल, और कुछ और डिजीज राइजोटोनिया सोलनी, जो पैथोलॉजिस्ट यहाँ पे राइस के रिलेटेड काम करता है। अगर इसके बारे में आपको लास्ट में पूछना है तो आप बता दीजिएगा। हाँ नेक्स्ट, ये कुछ, क्योंकि हम वीट भी लगाते हैं यहाँ पे, तो उसका एक यहाँ पे बहुत एक येलो रस्ट सिर्फ यहाँ कश्मीर में हॉट स्पॉट है इस डिजीज का, ये लगती है यहाँ पे, और बहुत सारा मटेरियल बाहर से आता है स्क्रीन करने के लिए, नेशनल और इंटरनेशनल, कि आप इस डिजीज के बारे में देख लीजिए, क्योंकि ये हॉट स्पॉट प्लेस है, बहुत ज़्यादा ये डिजीज आती है, इसको येलो रस्ट बोलते हैं भी, और यहाँ पे उसकी टेस्टिंग भी होती है। हाँ नेक्स्ट, ये कुछ पेपर जो हमने पब्लिश किए। हाँ चलो आगे, तो आगे, हाँ ये कुछ हम बॉटनिकल्स भी इस्तेमाल कर रहे हैं अगेंस्ट आई डिजीज के लिए। हाँ चलो आगे, चलो आगे। ये कुछ रिजल्ट्स जो बॉटनिकल्स के हैं एज ए रिप्लेसमेंट। देखिए, हम जो ब्लास्ट डिजीज है उसके लिए आमतौर पे ट्राइसाइक्लोजोल या और भी अजॉक्सिस्ट्रोबिन, ट्राइसाइक्लोजोल ये इस्तेमाल करते हैं टू प्रिवेंट द डिजीज। लेकिन अब हमने बॉटनिकल्स एज ए रिप्लेसमेंट देखा कि ये कुछ बॉटनिकल्स है जो रिप्लेस कर सकते हैं उन केमिकल्स को टू प्रिवेंट इट अगेंस्ट ब्लास्ट। हाँ चलिए आगे, तो कुछ रिजल्ट्स। हाँ आगे जल्दी। हाँ देखिए, ये बायोपेस्टिसाइड्स, मैंने बोला आपको सिंपल वर्ड्स में इसकी डेफिनेशन क्या है, समथिंग यू आर प्रिपेयरिंग। आप रखिएगा दिमाग में कि हमें कुछ प्रिपेयर करना है और जिसमें कुछ लिविंग हो। इफ बायोपेस्टिसाइड इज बेस्ड ऑन ट्राइकोडर्मा, तो ट्राइकोडर्मा उसमें लिविंग है। व्हाट ट्राइकोडर्मा इज, ट्राइकोडर्मा है क्या? सिंपल आप कह सकते हैं, देखिए दवाई लेते हैं ना, पैरास्टामोल, पैरास्टामोल से ख्याल, उसका ट्रेड नेम आपने देखा होगा बाहर, कल्पाल क्रोसिन। ओके, दैट इज अ प्रिपरेशन। कल्पाल क्रोसिन इज अ ट्रेड नेम विच कंटेन्स एक्टिव इंग्रेडिएंट पैरास्टामोल। पैरास्टामोल उसमें 250 mg या 500 mg अगर सु वेट करो ना तो सु दवा फो सह 2 ग्राम 3 ग्राम गो 500 mg अगर पैरास्टामोल एक्टिवेटेड, व्हाट अदर इट कंटेन्स, बाकी 1500 mg क्या अगर 2 ग्राम सु दवा फो 1500 mg क्या मीन्स दैट इज अ प्रिपरेशन which contains 500 mg active ingredient and 1500 mg something. What is that something? Remember, whenever you will develop any sort of preparation, अगर तो दवा छ बनावन, चाहे बायोपेस्टिसाइड छ, चाहे केमिकल पेस्टिसाइड छ, we develop it in 2 parts. हम 2 parts में बनाते हैं. One is active ingredient and second is it acts as a carrier.
युस बाकी 1500 mg 1500 mg इसमें युस तो ये दवा एक्सपायरी वो एक्सपायरी उसको एक्टिव इंग्रेडिएंट अगर 65 mg ये 65 mg रोज 2 वरियन तान मगर यह कुछ थी 65 mg बराबर 2 वरियन तान यह गई 400 mg 100 mg कम यह हम 1500 mg यम जत आसन वो 1500 mg एक्ट कर एज ए कैरियर to carry this active ingredient up to 2 years. That's why it's written on the chemicals. Chemical अगर आप देखेंगे कोई भी हो पैरास्टामोल दवा है उसमें लिखा है एक्सपायरी डेट इज 2 years, किसी में 1 year. वो एक्सपायरी है क्या? वो एक्सपायरी उस एक्टिव इंग्रेडिएंट को वहां तक रखता है। इसी तरह अगर आप बायो फॉर्मुलेशन नाउ बायोपेस्टिसाइड ओके, अगर आप बायो फॉर्मुलेशन बना रहे हैं आपको देखना है कि हमें 2 हिस्सों में बनाना है। वन इज एक्टिव इंग्रेडिएंट एंड सेकंड इज दैट थिंग विच कैरी इट्स एक्टिव इंग्रेडिएंट अप टू 1 year, 1 साल। CIB गाइडलाइंस में कम से कम 6 मंथ। अगर ट्राइकोडर्मा मैंने बोला ट्राइकोडर्मा एक फंगस बेनिफिशियल फंजाई है और ये बेनिफिशियल फंजाई उन फंजाई को मारता है जो हैजर्डियस है, जो प्लांट को नुकसान पहुंचाता है। ये बेनिफिशियल यह सॉइल मन यह दिवान हुमन बाकियन फंक्शन ब्रोट पकन, लेकिन अब ऑलरेडी किसी जगह है पकन फील्ड्स में कैसे चल रहे हैं तो आप देख रहे हो कि इस प्लॉट में अच्छा खासा ग्रोथ है, इसमें कुछ बीमारी है ही नहीं। नेक्स्ट टू इट वहां पे बीमारी बहुत आ रही है और आपने कोई स्प्रे किया ही नहीं यहाँ प्रिवेंट करने के लिए, आप ऐसे ही चल रहे हैं। आप देख रहे हो इस प्लॉट में अच्छी खासी ग्रोथ है, इस प्लांट में ग्रोथ है ही नहीं, इसमें बीमारी है, प्लांट व्लांट होती। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि हमने स्प्रे भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, लेकिन इस प्लांट की जब हम सॉइल ली हमने टेस्ट किया तो हमने देखा यार इसमें तो कुछ ऐसी चीज हमें मिली सॉइल में, इसने बीमारी करने दिया ही नहीं और वो हमने वो सॉइल वहां से ले ली। उस सॉइल को उठाने पे हमने देखा कि वहां पे कुछ बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑलरेडी थे, उसने बिल्कुल भी बीमारी पैथोजन भी थे लेकिन आगे बढ़ने नहीं दिया कि कोई करे अटैक। और यहाँ पे ये थे नहीं इस प्लॉट में, ये बड़े ही आगे इनको अटैक इनको डैमेज। हमें इसी सॉइल, इस सॉइल को अंग्रेजी में बोलते हैं सप्रेसिव सॉइल। अगर आपको ये फॉर्मुलेशन बनानी है और आपको देखना है कि इसका अनोई फंगस, ये फंगस इसी सप्रेसिव सॉइल से लानी है। तो शो पता यम साथ बेमार प्लांटन बेमार यम साथ आए ना बारसस, मतलब यम साथ यम गॉडनेथ आए बहुत पहले 1850 कथ कि यम बेमार यु आए तम साथ पत गई सारी है सुकार रन क्या करो अगर बोर गो मैं वन नोट भी किया करो, ऐसा कर रहे हो ना? हाँ, कल वाइस चांसलर साहब ने भी बोला था कुछ डायरी रखनी है आपको, हाँ। नोट करना है और वो फिर पूछेंगे आपको वैलिडिटी में कि लेक्चर की थे क्या होस क्या नो होस तो क्या है छू, तो ये सब चीज़ें नोट करना है। देखिए इन साथ इन डिजीज बारसस आए वहाँ पे लोग उस वक्त गए कनकस लज बेमारी, जो मैं राष्ट्र दिखा रहा था यो है राष्ट्र लज गॉडनेथ कनकस, लोग गए परेशान है बेमार तम साथ नहीं डॉक्टर वाक्टर या यूनिवर्सिटी नहीं गसन दस्ती हम जाएंगे इत पे है गो प्रीस्ट पादरियस नश गो चर्चस मन बिहित करो तमिस कत है ये बेमार आई अत क्या कर यम गई तमिस नश जवाब सो तोड़ दे तुम वना कर ज्यादा तवे आई बेमार आई इसलिए तुम चर्चस मन ज्यादा तुम मंगुन वना गन कम तुम कत पे वन अच्छी पढ़ दोपस तुम खो पहाड़स मज तक यह बेमार, मतलब तम गई लोग परेशान, तम खी पहाड़स मज तक कनक लोगमुत तमिस आई बेमार, तम दोप ये पोज वन पहाड़ी लोग तेल गुना कर कहें गुना वो गसन ते, लेकिन पहाड़ में बेमार क्यों नहीं आई, पहाड़ में ग्रीनरी अभी तक क्यों है? आप देख रहे हो ये पहाड़न पे वन गाड़ी तम ग्रीन सरसब्ज, न हम खाद डालते हैं न कुछ, लेकिन वो सब्ज कहाँ से आते हैं, उनकी ग्रोथ कहाँ से होती है? Yes, natural, and you will find lot of beneficial microorganisms here. Why we have not applied any chemical fertilizer here to kill those beneficial microorganisms. Plains में हमने बहुत सारे chemical
केमिकल फर्टिलाइजर जो भी है, यूरिया त्रायो, डाई त्रायो, और बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार के हमने क्या पाया? हमने पाया कि बीमारी हसन ज्यादा गए, और अब हम दोबारा ऑर्गेनिक की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। तो ये आपको याद रखना है, यू विल फाइंड बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म अभी भी है। किसी किसी प्लेन्स में तो बहुत कम मिलेंगे, लेकिन किसी किसी प्लॉट में मिलेंगे। अगर नहीं है तो लाएंगे कहाँ से? आपको लाना है, आप पहाड़ पे जाइए, पहाड़स पर वुचो है तथा ग्रोथ होता असल। अगर यार्डन निश वुचो तुम यार्डन कुल निश, यू विल आइसोलेट सॉइल फ्रॉम देयर, लॉट ऑफ बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर देयर। न सिर्फ ये कि प्लांट्स को डिजीज से बचाने के लिए, बल्कि ग्रोथ, वो ग्रोथ रेगुलेटर्स, एसोटोबैक्टर, एसोस्पाइरलम, राइजोबियम, ये सारा यू विल से लाना है। हम लैब में दिखाएंगे आफ्टर निमाज कि ये एक्टिव इंग्रेडिएंट जैसे ट्राइकोडर्मा हमारे पास है, ये कहाँ से लाया और किस तरह हमने आइसोलेट किया है, कि जब आप जाएंगे खुद आइसोलेट करने के लिए तो आपको याद रखना है कि यू हैव टू गेट इट फ्रॉम द सप्रेसिव सॉइल। Those soils suppressive, where automatically pathogens has been suppressed. जो बीमारी करते हैं प्लांट्स में वो सप्रेस किया है किसी ने, आपने स्प्रे भी नहीं किया, ऑटोमेटिकली इट हैज बीन सप्रेस्ड। देखिए ये मैंने दिखा दिया कि ट्यूमर के केसेस कितने हो रहे हैं, केमिकल हमें अवॉइड करना चाहिए आगे। तो फिर अल्टरनेट क्या है? अल्टरनेट यही सब चीजें जो मैं बता रहा था आपको। हाँ, insecticide 60%, fungicides 20%, and herbicides we are applying here. And we need insecticides in India 16%, but biopesticide market is only 4%. Why? You know, people are avoiding this so that the market of fungicides, market of insecticides should go ahead. It should remain like this. नहीं हमें चाहिए। एक बार हमने सुना कि कश्मीर में ट्राइसाइक्लोजोल बहुत आया, लेकिन यहाँ पे जरूरत ही नहीं ट्राइसाइक्लोजोल ब्लास्ट के लिए। इतना ज़्यादा यम साथ सोहोस ये आसन सु टोल वगैरह तक गोमुत वारिया ट्राइसाइक्लोजोल पास, पता नहीं कितने करोड़ों का, लेकिन फील्ड में अप्लाई हुआ ही नहीं। और तम साथ जरूरत ये बिजनेस ट्रेंड अब बनी है कि नहीं। Important, देखिए 2-3 चीजें हैं where you can become a best entrepreneur. One, lot of awareness is needed. Awareness आप करो अपने अपने एरिया में। आप देखो कि जब आप अवेयरनेस से शुरू करोगे ना, क्या अवेयरनेस? अभी एप्पल के लिए फंजाइसाइड हम इस्तेमाल करते हैं, और लोग जहाँ पे एप्पल स्कैब छ ना फंजाई लोग इथस फंजाई डिजीज इथस बेमारी लजम फंजाई से लोग इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल कर रहे हैं। और जहाँ पे इंसेक्ट्स लगे हुए हैं, वोली एफिड, संजोर स्केल, जहाँ पे ये लगे हैं एप्पल में, लोग फंजाइसाइड इस्तेमाल कर रहे हैं। जाते हैं दुकान पे अजदहास दवा इंसेक्टिसाइड काढ़ो करो तो ये। यहाँ पे आपको अवेयरनेस, और आपके पास आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली यूनिवर्सिटी में आए। यूनिवर्सिटी का अभी स्प्रे शेड्यूल आपके पास अवेलेबल है, केवी के थ्रू आप ले सकते हैं वो स्प्रे शेड्यूल। आप आज से ही अवेयरनेस शुरू करो कि ये भी हम फंजाइसाइड जो इस्तेमाल करें। ख़ास तौर पे हमारे केमिकल्स अभी एप्पल के लिए इस्तेमाल होते हैं, और आप अवॉइड कीजिए जितना हो सके फंजाइसाइड इंसेक्टिसाइड लगाना, क्योंकि अभी फोरकास्टिंग भी हमें यहाँ प्रॉपर मिल रही है। यम रूद रूद बीच पे बेमारी स्कैब लगन ज़्यादा, यम रूद पे कहीं जरूरत स्प्रे कर कह चीज अवेयरनेस यथ मज तुम हेकियो ये लुकन वन कि यम फंजाइसाइड यम इंसेक्टिसाइड करो इस्तेमाल, ट्राइकोडर्मा करो रूट रॉट खतर इस्तेमाल, तेल केमिकल जरूरत कहीं, तो हमें कुछ फ्रेश फूड मिले। और मैं दिखा रहा था आपको कि बहुत सारे केसेस अभी सिक्किम्स में मिल रहे हैं ट्यूमर्स, और वो लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन केमिकल्स की तरफ जाते हैं। देख रहे हैं हम किस अगर गरस मज गगड़ दवा है ये दूर पर ये दूर ये कोर इस्तेमाल, अरे ब्रोड अगर पाल हो तो सुई ब्रोड कर इस्तेमाल। तो ये सब चीज़ें आपको दिमाग में रखने हैं कि हाउ टू अवॉइड दीज केमिकल्स। नाउ स्टेज हैज कम वेयर वी हैव टू गो टुवर्ड्स ऑर्गेनिक, एंड इन दैट वी हैव टू अवॉइड केमिकल्स। एब्रप्टली नहीं, अगर आप एब्रप्टली करेंगे ये इंसान एंटीबायोटिक नामथन वरियन आसन खिमित तमिस दपा एब्रप्टली कर एंटीबायोटिक बंद वन यम दवा की सह बिचार उतर तमिस स्लोली कर कम। सिमिलरली यहाँ पे देखना है अगर 20 स्प्रे कर 30 स्प्रे कर
लेकिन इसको हम कम करके 10 स्प्रे 5 स्प्रे वो पता 2 स्प्रे ऑटोमेटिक, और नए नए प्लांटेशन में ये सब कर सकते हैं कि वहाँ पे आप बिल्कुल भी नहीं करो, स्टार्ट करो ऑर्गेनिक से ही, वहाँ पे बिगाड़ी नहीं आई। देखिए ये सब चीज़ें जो CIB सेंटर इंसेक्टिसाइड बोर्ड में देखेंगे कि ये चीज़ें हैं। ट्राइकोडर्मा 409 प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल राइट नाउ इन इंडिया, और बाकी सारे प्रोडक्ट जितने भी हैं बायो कंट्रोल एजेंट्स के वो अवेलेबल हैं इंडिया में। हाँ नेक्स्ट, तो कुछ पेपर्स में साइड बाय साइड दिखा रहा हूँ जो हमारा यहाँ पे एक बेसिलस दिखाया है, बेसिलस जी, Bacillus is a bacteria, Bacillus subtilis mostly is a bacteria and which is also beneficial. That is the only 1 gram positive bacteria और वो सुपोर बनाता है। तो Bacillus आप beneficial microorganism है, Pseudomonas fluorescens is another bacteria, वो आप beneficial है, Azotobacter beneficial है, Azospirillum beneficial है। ये Azotobacter, Azospirillum जो भी मैं बता रहा हूँ ये आपको वाडरा से पता चलेगा बायो फर्टिलाइजर वो क्या क्या इस्तेमाल करते हैं। बट Pseudomonas fluorescens we mostly use against to prevent diseases. Bacillus subtilis we mostly use to prevent diseases. Trichoderma we mostly use to prevent, to keep disease away. और बायो फर्टिलाइजर का काम भी ये देते हैं साइड में, और मैंने बोला कि आप एज बायो फर्टिलाइजर ही इनको यूज करो। ये मैं दिखा रहा था ये रिसर्च पर्पस के लिए कुछ पेपर। देखिए यहाँ पे मैं फिर स्टॉप करूँगा इंशाल्लाह आफ्टर नमाज, फिर आप पूरा दिन इधर ही है, We have some other programs. फिर मुझे मजा नहीं आएगा। We wish sir we continue क्योंकि कल भी हम चाहते थे कि आप कहो, आपने बोला भी, but the things that the problem नहीं, मैं चाह रहा हूँ कि आप ट्राइकोडर्मा में ट्रेन हो जाए, ये मेरा मकसद था। या अगर मैंने हम सर ये पेपर हमारा एक है। जब भी आप रिसर्च स्टेशन में जाएंगे ना, you should keep in your mind कि how many papers they have published in well reputed journals। हो सकता है कुछ स्टूडेंट भी हो। जब भी आप बाहर किसी रिसर्च स्टेशन में जाएंगे कि आप रिसर्च में पेपर पब्लिश कर रहे हो, क्यों? क्योंकि ये ऑथेंटिकेशन है कि ये बंदे अच्छा काम कर रहे हैं, और आपके ये दिमाग में होना चाहिए कि कहाँ पे पेपर पब्लिश हुआ, इसका इम्पैक्ट क्या है। तो हमने कुछ ट्राइकोडर्मा यहाँ से कलेक्ट किया, और यहाँ का ही ट्राइकोडर्मा होना चाहिए। ये ट्राइकोडर्मा वहाँ इस्तेमाल करोगे बाहर, लेस्ट इट विल शो लीस्ट इफेक्ट, और बाहर के यहाँ पे ट्राइकोडर्मा इस्तेमाल करोगे, ये केमिकल नहीं है, दिस इज समथिंग बायो। इसने अपना माहौल देखा और यहाँ पता नहीं फिट यहाँ पे फिट बैठेगा कि नहीं बैठेगा, ये देखना है हमें। हाँ आप बैठो। देखिए ट्राइकोडर्मा को अगर ऑर्गेनिक मैटर मिला ना, तो ट्राइकोडर्मा मास मल्टीप्लाई करता रहे, ठीक है। ये कंटिन्यूअस 20 साल। और ट्राइकोडर्मा में एक खासियत ये है, इट फॉर्म्स क्लाइमेडोस्पोर्स। ये एक ऐसा बायो कंट्रोल एजेंट है विच फॉर्म्स दैट काइंड ऑफ स्पोर्स, एंड दैट स्पोर्स क्लाइमेडोस्पोर्स मीन्स जब भी इसे लगा कि नबर खतर वन मेजमन खतर बह हेक बचित, यह दस्ती निवन क्लाइमेडोस्पोर बनाइथ। और वो क्लाइमेडोस्पोर ट्राइकोडर्मा में देखा गया 12 साल 15 साल भी रह सकते हैं कि अगर नबर आ कंडीशन खराब 15 वुहर मिलो ना अमिस पन ऑर्गेनिक मैटर ये पे ग्रो गमिस मिलो वर्मी कंपोस्ट, अमिस मिलो काउडंग, अमिस मिले रूट एक्सीडेंट्स ऑफ दैट प्लांट विच इट लाइक्स। से फॉर वन ट्राइकोडर्मा अनहुन एप्पल पे, ट्राइकोडर्मा अनहुन मुश्क बुज्जी पे। मुश्क बुज्जी पन मज अमिस आमुत, अमिस तम रूट एक्सीडेंट प्लांट रटी तम मिले नमिस होत। ये ट्राइकोडर्मा गि मुश्क बुज्जी कर मुश्क बुज्जी खतर इस्तेमाल, ट्राइकोडर्मा गि एप्पल को कर एप्पल खतर इस्तेमाल। यह बह वन तुम स्पेसिफिकेशन से मतलब कितना ये मतलब कितना, तब जाके हम बाहर लाएंगे जो मैंगो में रहा होगा तो सुकत गसी, लेकिन ये जिंदा रहेंगे 20 साल भी मिट्टी में, 25 साल भी अगर ये क्लाइमेडोस्पोर बनाएंगे। कभी कभी नहीं बनाते तो 1 साल के बाद रहेंगे, 6 महीने के बाद रहेंगे नहीं, अनटिल अनलेस इट विल नॉट गेट ऑर्गेनिक मैटर या ऐसा कुछ उसे मिले रूट एक्सीडेंट्स प्लांट्स के जिससे ये जिंदा रहे। हाँ देखो एक बात है, आप यहाँ जनरेट नहीं, पोटैटो उसका खाना है, जनरेट नहीं होता है।
देखो देखो, हाँ हाँ पोटैटो, बायोलॉजिस्ट हैं, उसने बोला कि हम जानवर उससे भी कर सकते हैं ट्राइकोडर्मा। देखो उसको, मीडियम है कि हाँ वैसे? मीडियम है। पोटैटो डेक्सट्रोज अगर Exact. या पोटैटो डेक्सट्रोज ब्रॉथ, पोटैटो में मज़ा आता है इसको, क्योंकि फंगस है, पोटैटो होगा तो पोटैटो में ग्रो होगा। लेकिन जब तक इसे अपना खाना नहीं मिलेगा, इंसान दपन इंसान रोज ना जिंद, जो हम खाते हैं सह वातान रगन मज सोरे तमिक ग्लूकोज व्लूकोज लागान तेल थो रगन मज इंसान बेही दपोस मा खेई कह तम खो असल न्यूट्रेंट वातनस डायरेक्ट बे रगन मज यह डाइजेशन वाइजेशन यहाँ से क्या दिवन तमिस पर डॉक्टर दपान है ना बेहतर गया ग्लूकोज लगा क्या अगर ये खेई कह क्योंकि हमारा सारा सिस्टम है। इसी तरह ट्राइकोडर्मा को भी आपने जो पोटैटो देंगे ना कंटिन्यूअस पोटैटो पोटैटो है, मैं मिलो ना पन माइक्रो क्लाइमेट अपना मुझे क्लाइमेट दे दो, और वो क्लाइमेट है उसका प्लांट, और वो क्लाइमेट है उसका फील्ड जहाँ पे ये ज़्यादातर रहता है, उस फील्ड में ये क्या लेता है वही इसको ज़्यादा चाहिए। और हम जब पोटैटो ये लाते हैं ना, पोटैटो में आर्टिफिशियल ग्रो करते हैं मीडिया, आर्टिफिशियल ग्रो करने पे लैब में क्या होता है, इस एक्टिव मारने खतर हुमन, जब हम एक साल सिर्फ पोटैटो 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 पे दपान तला मारुन सह फंगस यह बह ना हेको वह कर। फर्मेंटेशन इससे बहुत तेज होती है, ये मैंने हाँ ये तो सही है। तो हम देते हैं आर्टिफिशियल डाइट इसको किस कुछ टाइम तक ये गैस ग्रो, पत करो डिस्ट्रीब्यूट तो पत त्रम फार्म फील्डस में, तो कोशिश करें कंटिन्यूअस लैब में थावन सह एफिशिएंसी, ये ग्रोथ भी कम होती है इसकी। इसको अच्छा है कि आप डालो किसी पॉट में रखो, एक प्लांट रखो उधर डालो और फिर पॉट से आइसोलेट करो, इसकी एफिशिएंसी। ये भी एक टेक्निक आप याद रखिएगा कि आपका एफिशिएंट ट्राइकोडर्मा कैसे बन सकता है, एफिशिएंट आपका ट्राइकोडर्मा कैसे बन सकता है, यस जो काम करे पगा। तो दियो अमिस आर्टिफिशियल डाइट और ग्लूकोज से पे थो यह पान कमजोर दपे वन जरूरत, आपको वो डाइट देना है जिसके लिए बेचारा यमिस जरूरत है, तो वो डाइट इसको वहाँ से ही मिलेगा। तो आई थिंक आई विल स्टॉप हियर। जो बायो फॉर्मुलेशन हम बनाते हैं, आपको कहाँ जाना है अभी? Actually, we have two places. One is Bijpara and second is Pulwama. देखिए मैं सर अगर एक ही साइड में कुछ आप साइड कर कैंसर तो ये चीज सर जो आप चाहे देखें। Lab मजन अगर तो यमन थोड़ा बहुत की टाइम दी। हाँ यस स्टिल आफ्टर विच वन इट डिपेंड्स अपॉन यू। देखिए एक बात है, नमाज का टाइम अगर नमाज के बाद आप आए तो मैं लैब में भी आपको सारा दिखा सकता हूँ ये सब चीज़ें, और साइड बाय साइड ये बताता रहूँगा, ठीक है? तो जो भी आपको मेरे से ज़रूरत है सर we will do one thing, we will skip Bijpara. तो इसका सुपर ये पे डायरेक्ट पुलवामा। सर वो skip पुलवामा ना we cannot skip both the place. ये आप पे डिपेंड है।